एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करੈ आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, सतगुर ज्ञान, दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान, दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम।
ना जापे आराध। ओट तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम अगाध। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, आठ पहर आराधिए, पूर्ण सतगुर ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। वाहिगुरू। भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य। निर्वाणी भंजन निधान अमूल्य, भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, भंजन निधान अमूल्य। निर्वाणी अथाह तोले, अथाह तोले, निर्वाणी अथाह तोले, निर्वाणी अथाह तोले। दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन
धन गुरु नानक। एक एक शब्द, एक एक अक्षर इस शब्द का उस एक ओंकार के उस्तत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन आनंदित हो जाता है ऐसा शब्द पढ़कर। एक एक शब्द मन को आसरा देता है, मन को धीरज देता है, सपोर्ट करता है मन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। एक एक अक्षर दुख भंजन, दुख भंजन, निधान अमूल्य, दुखों का नाश करने वाला एक ओंकार अमूल्य, जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निधान है तू, हर पदार्थ देने की समर्था रखने वाला, और ये सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चाहे वो कर सकता है। दुख भंजन, निधान अमूल्य, निर्भव निर्वैर, अथाह अतुल्य। तू निडर है, निर्वैर है, अथाह है, अतुल्य है, तेरा कोई तोल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे तुल्य कोई नहीं। एक एक अक्षर, एक एक अक्षर गुरु की उस्तत है। अकाल मूरत, जो प्रकरण चल रहा है, अकाल मूरत। तू समय से परे है, मौत से परे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मूरत है, हस्ती है, अकाल है पर तेरी हस्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी संभव मन सिमरत ठंडा थीवा जियो। तेरा नाम जप के, मूल मंत्र जप के, वाहिगुरु जप के मेरा मन शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल ताती ठांडा हर नाव। बाबा नंद सिंह जी तो हर कीर्तन में ये वचन आखिर में किया करते थे कि इस मन को शीतल करने के लिए सिवाय नाम के और दूसरी कोई चीज नहीं है। नाम चलेगा हृदय में, मन में शांति है। नाम नहीं, कलेश है मन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस कलयुग में मन में आग लगी रहती है हर एक के, हम सबके मन में आग से दहक रहा होता है। ईर्ष्या से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, निंदा से। पर ये नाम सिमरत ठंडा थीवा जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नह शीतलं चंद्रदेवा, नह शीतलं बावन चंदन है, न शीतलं सर्द रुतेन नानक शीतलं साध स्वजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चंद्रमा में बहुत ठंडक है पर मन को ठंडा नहीं कर सकता, वो मन की तपश नहीं मिटा सकता। चंदन की लकड़ी को, जहाँ चंदन का पेड़ हो, सांपों से लिपटा होता है वो, क्योंकि सांप का जहर उसे परेशान करता है, आग लगाता है अंदर। ये सजा है उनकी। चंदन के पेड़ को लिपट कर वो ठंडक महसूस करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनको शांति मिलती है। पर पातशाह कहते हैं वो चंदन की लकड़ी तेरे मन को ठंडा नहीं कर सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। न शीतलं सर्द ऋतेन, सर्दी की ऋतु हो पर अगर मन में आग लगी हो, वो सर्दी की ऋतु मन को ठंडा नहीं कर सकती। नानक शीतलं साध स्वजन है। साधु की संगत में बैठकर जब तू जपेगा नाम, तेरा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन। आइए एक बार पंक्तियां फिर से पढ़ लेते हैं। दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख
तोले निर्भय निर्वैर अथाह तोले दुख भंजन ध्यान अमोले दुख भंजन निधान अमोले निधान अमोले प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अर्थ चल रहे हैं श्री जपजी साहब जी की वाणी के और अक्षर चल रहा है अकाल मूरत। पातशाह वाणी में समझाते हैं अकाल मूरत जो मौत से रहते हैं, अज्ञान से रहते हैं, जिस दिन तेरे भीतर प्रकट हो गया तेरा शरीर एक मंदिर बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि है भीतर अकाल है पर मूरत भी है। मूरत का भाव यहाँ पर हस्ती आता है। जहां पर भी अकाल मूरत लिखा हुआ आता है ना, अकाल के साथ जहां मूरत लिखा हुआ है वहां पर उसका भाव है हस्ती, उसकी होंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को थोड़ा सा विचार लेना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो आगे जाके क्लियर करेंगे, गुरु मेहर करेगा। पातशाह समझाते हैं कि तेरे शरीर की बनतर कैसी है। वाणी में एक एक पहलू को बड़ी डिटेल में समझाया गया है। शरीर की बनतर, अकाल मूरत जिस दिन तेरे हृदय में प्रकट हो गए तेरा शरीर गुरुद्वारा बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, मस्जिद बन जाएगा। गुरुद्वारे हम क्या करते हैं आकर? गुरु के दर्शन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेकते हैं। वही अगर गुरु हृदय में प्रकट हो गया तो ये हृदय एक मंदिर बन जाता है, शरीर पूजनीय हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहो वाहो करे सही जन सोने तिनको प्रजा पूजन आए। वाणी कहती है कि ऐसा शरीर पूजनीय हो जाता है जो वाहिगुरु वाहिगुरु श्वास श्वास जपता है। क्यों? इसमें काम खत्म हो जाता है, क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो जाता है, केवल वो रह जाता है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ऐसे शरीर को पूजने का मन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी, संत अतर सिंह जी मस्तु आने वाले, संत हरनाम सिंह जी, संत बाबा महा हरनाम सिंह जी, संत बाबा ईश्वर सिंह जी राड़ा साहब वाले, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका हृदय ही गुरुद्वारा बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये बनता कैसे है? कई लोगों के इसके पीछे सवाल है। शरीर की बनतर के बारे में वाणी में बड़ी डिटेल में बताया है। श्रवण कीजिए बड़े ध्यान से। पातशाह कहते हैं शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रिय होते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 विकार इंद्रिय। थोड़ा सा डिटेल में इसे समझ ले फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी तरह की संगत होती है, उन्हें थोड़ा डिटेल में समझाना जरूरी होता है, समझ में आ जाए बात। 5
कर्म इंद्रिय होते हैं। कर्म इंद्रिय कौन से होते हैं? मुख, हाथ, पैर, जन्म इंद्रिय, जहां से मल मूत्र का द्वार होता है वो, ये 5 मिलाकर ये कर्म इंद्रिया होती है। बड़े ध्यान से समझना, मुख को कर्म इंद्रिय में रखा है, ज्ञान इंद्रिय में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जब हम कुछ खाते हैं, हमारे दांत उसे चबाते हैं, वो कर्म कर रहे हैं, पर दांत स्वाद नहीं ले रहे। स्वाद कौन ले रहा है? जीभ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए जीभ को ज्ञान इंद्रिय में रखा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में बड़ी डिटेल में ये बातें आई हैं। 3 तरह की, एक्चुअली में तो इतनी बड़ी डिटेल है, एक एक मांसपेशी के बारे में लिखा है वाणी में, एक एक मांसपेशी के बारे में डिटेल में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास कहता है कि अगर साइंटिस्ट श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सपोर्ट ले लेना कहीं, तो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बहुत थोड़ी करनी पड़ेगी, फल बहुत ज्यादा पालेंगे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुख, हाथ, पैर, जन्म इंद्रिय, मल द्वार, ये 5 कर्म इंद्रिय हैं जो कर्म करते हैं। कर्म करते हैं, पर कर्म करते वक्त कभी ख्याल किया है कि जब हम ज्ञान इंद्रिय भी अगर है, महापुरुष समझाया करते थे कि आंखें किसी को देखकर देख रही हैं। आंख क्या है? मांस और पानी। आंखें जब किसी को देख रही हैं, आंख कैसे देख सकती है? ये तो मांस और पानी है। पीछे बैठकर देख कौन रहा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो देख रहा है इन आंखों से, वो है अकाल मूर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। है भीतर, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। दास महापुरुषों के साथ रहा है ना, तो एक महापुरुष तो ऐसे निराले मिले थे जिनके साथ कुछ समय रहने का मौका मिला था। वो अगर संतरा खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हो, कोई फ्रूट कुछ भी खा रहे हैं ना, तो एक बाइट लेकर ना खो जाते थे। रसना पे रखा संतरा, उसका रस लिया और खो गए काफी समय तक। तो दास को समझ तो आ गई थी बात, फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आप क्या रस ले रहे हो? कहने लगे मैं रस नहीं ले रहा, मैं उसे देख रहा हूँ जो रस ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही मैं संतरा खाता हूँ, स्वाद लेता हूँ, स्वाद आता है, वो स्वाद लेने वाला कौन है? मैं उसके ध्यान में खो जाता हूँ। भाव अकाल मूर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी इस बात को बहुत ही डिटेल में समझाया करते थे। उनकी तो इतनी बड़ी किताब है इसके ऊपर कि भीतर कौन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिसका ध्यान इसके अंदर चला गया ना, ओशो भी इस बारे में बहुत डिटेल में समझाया करते। साक्षी भाव कहते थे उसे ओशो, साक्षी भाव। एक्चुअली दास को पढ़ने का शौक है, किताबें तो मैं हर एक को पढ़ता हूँ। कोशिश करती जो किताब मिल जाए, जिसमें से जो मिल जाए, कोशिश होती है। तो उसे वो साक्षी भाव कहते थे, जिसे गुरबाणी अकाल मूर्त कहती है। जिसे महापुरुष कह रहे थे कि मैं ये देख रहा हूँ कि रस ले कौन रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अवस्था है! जिस चीज में भी आनंद आ रहा है, तो उस आनंद में नहीं खो गए, आनंद जो ले रहा है उसके ध्यान में खो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये विचार इतना गहरा है ना साध संगत जी। आप भी जरा सोचना, कीर्तन सुन रहे हो, रस आ रहा है वाणी का, ये रस ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? अकाल मूर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जो एक ओंकार है, जिसका नाम सतनाम है, जिसका गुण है अकाल मूर्त, वो भीतर प्रकट हो जाएगा अगर ये ध्यान में आना शुरू हो गया। अगर ध्यान वहां पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। मेडिटेशन क्या है? असल में तो मेडिटेशन अधूरा काम है। मैंने मेडिटेशन बहुत सारे सेंटर्स, बहुत सारे लोगों से करवा के देखा है। मैं जानना चाहता था कि वो क्या करते हैं, पर मैं किसी को बुरा या छोटा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी चीज है मेडिटेशन। पर अगर मेडिटेशन के साथ नाम को जोड़ दिया जाए ना, जादू का काम कर सकता है। अगर मेडिटेशन के साथ ध्यान अकाल में चला जाए तो चमत्कार कर सकता है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन में 90% काम हो चुका है। सुरत टिकाने पे आनी शुरू हो गई है, एक पॉइंट पर केंद्रित हो गई है सुरत, पर वो सुरत अब केंद्रित होने के बाद कुछ कर नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वो पॉइंट अकाल मूर्त हो जाए, एक ओंकार हो जाए, तो जो चाहिए वो पालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख,
नाक, कान, जीभ और स्किन, चमड़ी। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, वो 5 कर्म इंद्रिय, और 5 बड़े ध्यान से समझना विकार इंद्रिय। अब हमें ये 10 इंद्रिय तो दिखाई देते हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, पर विकार इंद्रिय दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। काम है अंदर, क्रोध है अंदर, लोभ है, मोह है, विकार है, अहंकार है। कोई कहे दिखाओ तो ये दिखाए नहीं जा सकते, क्योंकि ये भीतर है जरूर, सबको पता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार अकाल मूर्त महापुरुष कहते थे इसके पीछे बैठा है। अकाल मूर्त जो है अहंकार के पीछे बैठा है। एक एक लेवल है, एक एक सीढ़ी क्रॉस करनी होती है। सबसे पहले जब आदमी उठता है ना, तो लोभ से ऊपर उठता है। लोभ, जो लोभ से ऊपर उठ गया समझो पहली स्टेज पार कर गया। सेकंड स्टेज आती है, ये बड़ी डिटेल है इसके बारे में, बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे। लोभ के बाद स्टेज आती है मोह की। आदमी फिर मोह से ऊपर उठता है। जो मोह से ऊपर उठ गया उसके अंदर बैराग जागना शुरू हो जाता है। जब बैराग जागना शुरू हो जाता है, अवस्था मिलनी शुरू हो जाती है। वो लोभ से भी ऊपर उठ गया, मोह से भी ऊपर उठ गया, फिर उठता है क्रोध से ऊपर। क्रोध से ऊपर उठता है, तीसरी अवस्था है। क्रोध आना बंद हो जाता है, दया आती है, तरस आता है, क्रोध नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर आता है काम। काम को सबसे खतरनाक कहा गया है। बड़े से बड़े ऋषि मुनि ये कब जाके किसको गिरा दे आखिर दम तक किसी को नहीं पता। कोई भी गारंटी नहीं ले सकता किसी की, ना अपनी ना किसी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इससे तो वही बचा सकता है जिसके सिर पे महापुरुषों का हाथ हो, जैसे बाबा नंद सिंह जी, बाबा महाराम सिंह जी। जो महापुरुषों की संगत करता हो, उनके छत्र छाया में हो, वो बाह पकड़ कर बचा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी है अहंकार, जो वासना को भी पार कर लेते हैं ना, फिर उनको लोग भगवान कहना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर आकर अटक जाते हैं कि मैं कुछ बन गया हूँ। अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ज्ञान इतना हो जाता है, जब आदमी इन 4 चीजों पर काबू पा लेता है, ज्ञान इंद्रिय खुल जाते हैं। जिस बात को समझने में किसी को 2 घंटे लग जाए, वो बात 1 सेकंड में समझ में आनी शुरू हो जाती है, जब ये चीजें काबू में आ जाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस ज्ञान को समझने में कईयों को जीवन बीत जाता है, वो एक क्षण में प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें इन 4 चीजों पर काबू आ जाए। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है, जब अहंकार इस चीज का ही हो जाता है कि मैंने वासना को जीत लिया, मैंने इन 4 को जीत लिया। इसलिए सबसे खतरनाक है अहंकार, और इससे कोई अपनी ताकत से नहीं जीत सकता, कोई नहीं। ये गुरु प्रसाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु देखता है ना कि ये मेहनत कर रहा है, अमृत वाले भी उठ रहा है, सिमरन भी कर रहा है, अरदासें भी कर रहा है, जीवन को उस तरफ चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है जैसा गुरु कहता है, तब गुरु तरस करता है और अहंकार खत्म करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार जब खत्म हो जाए, इंसान को दूसरे की गलती दिखाई नहीं देती सिवाय अपनी गलती के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवस्था ये बना देता है, अहंकार जब खत्म हो जाए, हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। पातशाह कहते हैं 3 प्रकार के इंद्रिय हैं, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, विकार इंद्रिय, और उनके पीछे बैठा है अकाल मूर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 पर्दे जिस दिन हट गए, ये प्रकट हो जाएगा। ये जो 5 विकार है, इसी देही अंदर पंच चोर वसे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, अमृत लूटे मन मुख नहीं बूझे, कोई ना सुने पुकारा। कोई नहीं सुन सकता इस पुकार हृदय की सिवाय उस अकाल मूर्त के। उसे तरस आ जाए, उसे तरस आ जाए तो बल बख्शता है, पर्दे हटाता है, प्रकट हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार से ये 5 कर्म इंद्रिय
विकार इंद्रिय दिखाई नहीं दे रहे, कर्म तो दिखाई दे रहे, विकार इंद्रिय जो दिखाई नहीं दे रहे, अकाल मूर्त भी दिखाई नहीं देता। पर यहां पर इसीलिए कमाल का पहलू है, गुरु नानक पातशाह ने अकाल के साथ मूर्त लगाया। अकाल अलग अक्षर है, मूर्त अलग, पर जब मूल मंत्र पढ़ते हैं अकाल मूर्त, कि अकाल है, समय के अधीन नहीं, उसका कोई स्वरूप नहीं, पर मूर्त हस्ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिखाई नहीं देता पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, अथाह तोले, अथाह तोले, निर्मो निर्मय अथाह तोले, निर्मो निर्मय अथाह तोले। दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वैसे तो दास की घटना पहले सुना चुका है, पर बहुत सारी संगत नहीं है, और यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा मैसेज है, किसी को रास्ता मिल जाएगा, इसलिए दास थोड़ा शॉर्ट में सुना देता है कि अहंकार क्या करता है, कैसे रुकावट डालता है, और अहंकार खत्म कैसे होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दास को महापुरुषों ने भी कहा था, बड़ी डिटेल में समझाया था कि अहंकार को खत्म करना अपने बस में नहीं है। मुझे कहा था, मैंने कहा कि मुझे जाना है, संगत बुला रही है मेरे प्रोग्राम में, तो कहने लगे कह दे कि मेरा इलाज चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी सोच में पड़ गया, मेरा कौन सा इलाज चल रहा है, जाने से रोक क्यों रहे हैं। तो उन्होंने वो घटना सुनाई संत सुजान सिंह जी की। बाबा नंद सिंह जी, जब संत सुजान सिंह जी उनसे आज्ञा मांगते थे कि प्रोग्राम है, जाना है, चिट्ठी दिखाते थे, चिट्ठी आई है, प्रूफ दिखाते थे कि मुझे आज्ञा दो, जाना है। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे तू भी चिट्ठी लिख के डाल दे कि मेरा इलाज चालू है, मैं बीमार हूँ बहुत। संत सुजान सिंह जी मन में सोचने लगे महापुरुष हैं और झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा के कहने लगे भाई झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच है। तुझे बीमारी लगी बहुत बड़ी अहंकार की, और मैं हूँ डॉक्टर अहंकार का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा अहंकार दूर करके ही तुझे भेजेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अहंकार दूर कैसे करते थे? भरी संगत बैठी हो, कीर्तन कर रहे हैं संत सुजान सिंह जी महाराज, जिनका कीर्तन साथ संगत जी जिन्होंने उनको सुना है, दास ने उनके भी दर्शन किए। कहते थे जब वो कीर्तन करते थे ना, कोई माने या ना माने,
समा कहते थे रुक जाता था। और कुछ बातें ऐसी मैं यहाँ बताऊंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए रहने ही देता हूँ। जब वो कीर्तन करते थे तो उनके जैसा कीर्तनी आज तक मेरे ख्याल से तो नहीं हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे महापुरुष कहने लगे तू भी कह दे कि मैं बीमार हूँ, अहंकार से भरा हुआ है, तो तेरा इलाज करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर एक घटना याद आ गई। और अहंकार दूर कैसे करते थे बाबा नंद सिंह जी? मेरा भी महापुरुषों ने बहुत किया है। सारी संगत के बीच में बेइज्जती कर देनी, बेइज्जती ही करते रहना, तारीफ तो कभी करनी ही नहीं। संगत के बीच में तुझे कीर्तन करना नहीं आता, बाजा बजाना नहीं आता, तुझे अक्ल ही नहीं है, प्रमाण लगाना नहीं आता, माइक पर ही संगत के बीच में बेइज्जती रोज करते रहना। अब तो आदत पड़ गई थी, मतलब मन विनम्रता में आ जाता कि सच में कुछ नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी, उनका एक मित्र आ गया बाबा नंद सिंह जी की संगत में, कहने लगे मैं भी थोड़े दिन रुक जाता हूँ। वो कहते तू यहीं पे रहता है? संत सुजान सिंह जी को कहता है उनका मित्र, आप यहीं पे रहते हो, बहुत बेटा देते होंगे बाबा नंद सिंह जी। कहने लगे हाँ रुक जा, शाम को बेटा बहुत मिलने वाली है, प्रसाद बहुत देते हैं, तू भी देख लेना। और वही हुआ, शाम को कीर्तन करते हुए चुप करा के खड़ा करा दिया संगत में। और जो सुना है बाबा नंद सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी को कि कीर्तन करने की अक्ल नहीं तुझे, बड़ा रागी बना फिरता है। ये वो 15 मिनट तक संगत के बीच में बेइज्जती करते रहे। असल में वो बेइज्जती नहीं करते थे। मुझे भी क्योंकि बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़ा था, ज्ञान थोड़ा पता चल गया था। जब महापुरुष डांटते हैं, ताड़ते हैं संगत के बीच में सबके सामने, वो अंदर से अहंकार खत्म कर रहे होते हैं कि तू कुछ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो अहंकार खत्म करके अंदर कृपा भरते हैं, कृपा। इसलिए कहते हैं महापुरुषों की ताड़ना में भी तारना होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर महापुरुष डांट दें तो वो डांट नहीं होती, जीवन बदल के रख देती है उनकी डांट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने दास को समझाया था बड़ी डिटेल में, कहते थे ध्यान दिया कर, ध्यान दे, हर वक्त तेरे भीतर नाम चलना चाहिए। झाड़ू मार रहा है, कीर्तन कर रहा है, कीर्तन सुन रहा है, बात कर रहा है, ध्यान दे जो कि तेरे भीतर नाम चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब जब तू ध्यान देगा नाम चलना शुरू हो जाएगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा फिर चलता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे साक्षी भाव का है, जिसे अकाल मूर्त का है, जो अहंकार से पीछे बैठा है, अगर सुरत वहां पहुंच गई ना, भीतर नाम चलना शुरू हो जाए। यहां तक कहते थे कि अगर बाथरूम में गया है वहां पर भी नाम चलना चाहिए, हर कार्य में नाम चलना चाहिए, श्वासों के साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्भय निर्वैर अथाह तोले, निर्भय निर्वैर अथाह तोले, निर्भय निर्वैर अथाह तोले, निर्भय निर्वैर अथाह तोले। दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य, दुख भंजन निधान अमूल्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी जुक्ति है, अपना सको तो अपना लो साथ संगत जी। एक तो दास ने पहले भी बहुत बार बताया है, दो चीजें, दो काम जरूर कर लिया करो, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, जितना भी बिजी। समझो खाना खाने तो बैठोगे ही ना, हर 2-3 घंटे में, 2 घंटे में 10 मिनट केवल निकाल कर सिमरन कर लिया करो, अकेले अलग बैठकर। जितनी बार दिन में हो सके, समय मिले 5 मिनट 10 मिनट, समझो बाथरूम भी जा रहे हो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो,
साइड में खड़े होके सुरत सिमरन में टिका लो। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी जुक्ति है, अपनाई हुई है। करते 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 ऐसा हो जाता है कि सुरत सिमरन में जुड़नी शुरू हो जाती है, अपने आप सिमरन चलना शुरू हो जाता है। ये अभ्यास पर करना पड़ता है। शुरुआत में ये तरीके अपनाने पड़ते हैं। श्वासों पर ध्यान दो। जब श्वास पे ध्यान दोगे तो वाह गुरु अपने आप चलने लग जाएगा। चलता है, सिर्फ ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीवन में इतना रस आ जाएगा ना, बड़ी से बड़ी टेंशन भी होगी ना, बहुत छोटी लगने लग जाएगी। क्योंकि साथ में क्या है? नाम, जो मन को ठंडा करके रखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तन को भी मन को भी। मन ठंडा हो गया तो तन अपने आप ठंडा हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख भंजन निधान अमोल्य, बोलिए धन गुरु नानक। ये जो बात वाणी कह रही है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 विकार इंद्रियों के पीछे बैठा है अकाल मूर्त। उसे खोजना है। इसलिए तो कहते हैं ना कि बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताए। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। कि जो बाहर है वो भीतर है, भीतर खोजना है, भीतर की यात्रा करनी है। असल में गुरबाणी में तीर्थ यात्रा को मना नहीं किया है, पर गुरबाणी कहती है, बाणी कहती है, गुरु साहब जी कहते हैं तीर्थ तेरे भीतर है, यात्रा कर तो भीतर की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत पीपा जी इस बात को बड़ी खोल कर समझाते हैं। एक एक अक्षर ध्यान से श्रवण करना। क्या कह रहे हैं भगत पीपा जी, उनकी अवस्था देखिए। कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति। फिर से सुनिए। कायो देवा कायो देवल, कायो जंगम जाति। भगत पीपा जी कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में उस अकाल मूर्त की आरती करता हूं। हृदय में, अपने हृदय में मैं तीर्थों की तरह उसे खोजता हूं, क्योंकि मेरे भीतर तीर्थ है। मैं सफर तय करता हूं तीर्थ का विचारों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने भीतर मेरे तीर्थ है जिसकी मैं यात्रा करता हूं। कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो धूप दीप नहीं बेदा, कायो पूजो पाते। मैं भीतर ही धूप जलाता हूँ, भीतर ही उसकी पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर है वो अकाल मूर्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर कहाँ पूजा करूं मैं, मेरे भीतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वही कह सकता है जिसने उसे पा लिया है, जिसने इन 5 पर्दों को हटा दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। काया बहुखंड खोजते नवनिध पाए, काया बहुखंड खोजते नवनिध पाए। मैंने काया के भीतर खंडों की खोज की है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है, अंदर खंड है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और मैंने 9 निधि प्राप्त कर लिए। 9 निधि कहा है नाम को, 9 निधि अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु के नाम को 9 निधियां कहा है कि 9 निधियां 18 सिद्धियां पीछे लगे फिरे जो हर हृदय सदा ध्याय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर के अंदर ही मैंने नाम रूपी 9 निधियों को पा लिया। अब मेरी अवस्था ये हो गई है, क्या? श्रवण कीजिए। ना कछ आए वो, ना कछ जाए वो, ना कछ आए वो, ना कछ जाए वो, ना कछ आए वो, ना कछ जाए वो, ना कछ आए वो, ना कछ जाए वो। राम की दुहाई, राम की दुहाई, राम की दुहाई, राम की दुहाई। मैं राम की दुहाई देकर कहता हूँ, अब मेरा ना आना है ना जाना है, मेरा जन्म मरण मिट गया है, क्योंकि मैंने अपने भीतर उसे पा लिया है, खोज लिया है। किसे? आगे श्रवण कीजिए क्या कहते हैं, किसे पा लिया है? जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, जो खोजे सो पावे, जो खोजे सो पावे। बड़े ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। खोजना किसे कहते हैं? अपने भीतर विकारों से लड़ना। क्रोध आता है, आए, गुरु नानक पातशाह के वचन याद कर लिया करो। क्रोध आता है, काम जागेगा, लोभ जागेगा, गलत काम करने के लिए कहेगा, पर वो वचन याद कर लिया करो गुरु नानक पातशाह के, कि जहां से मन को ध्यान में आ गया, साक्षी भाव आ गया, जब ज्ञान हो गया कि ये नहीं करना है, वहीं से मोड़ ले मन को। जितना हो गया, समझो किसी से निंदा शुरू हो गई बात करके, अब निंदा हो रही, अचानक ध्यान आया नहीं भाई, निंदा ना करनी ना सुननी, वहीं पर अपने आप को रोक ले। जहां से मुड़ता है वहां से मोड़ ले। क्या होगा? एक दिन निंदा होने का ख्याल भी प्रकट होगा। गुरु नानक पातशाह के वचन है, मन पहले ही आवाज दे देगा नहीं करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन, खालसा सोए जो करे नित जंग। अपने मन से विकारों से लड़ता है, जो बार बार लड़ता है, चाहे हारे चाहे जीते, पर लड़के हारे, लड़े बिना ना हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोके गलत काम से अपने आप को। वो जितना ज्यादा लड़ेगा उतना ज्यादा जीतेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष तो डिटेल में समझाया करते थे, कहते थे लड़ रहा है ना, उसे तरस आएगा। अब युद्ध में सिपाही लड़के मरते हैं, हर कोई नहीं जीत के वापस आता। जो मरता है वो शहीद का दर्जा पाता है। जो लड़ भी रहा है ना, चाहे जीते चाहे हारे, जो लड़ रहा है गुरु की नजर में वो शहीद का दर्जा पा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके ऊपर कृपा हो जाती, तरस करता है, फिर बाकी मेहनत वो करता है। देखते हैं इसने मर रहा है, लड़के हार रहा है, फिर जीतने की ताकत वो देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो खोजे सो पावे। खोजना किसे कहते हैं? भीतर की यात्रा में जो जो रास्ते में रुकावट आए उससे लड़े। हमें लड़ना है। मन तो कहता है कि दुनिया के सारे गलत काम कर ले, उसे एक तरफ करो। गुरु क्या कहता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो ब्रह्मंड सोई पिंडे, ब्रह्मंड सोई पिंडे,
सतगुरु होए लखावे। कमाल की पंक्ति, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीपा प्रणव परम तत्व है, सतगुरु होए लखावे। परम तत्व, परम तत्व क्या है? जिससे सारे तत्व बने हैं, परमेश्वर एक ओंकार। सतगुरु जब दया कर देता है, जो खोजने की प्रयत्न करता है उस पर सतगुरु दया कर देता है, फिर क्या होता है? अपने भीतर ही सतगुरु होए लखावे, भीतर ही उसे गुरु के दर्शन हो जाते हैं, उस प्रभु के प्रकट हो जाता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। फिर से थोड़ा डिटेल में समझ ले इस बात को। ये 5 विकार हमें परेशान करते हैं। मन कहता है कि पराया रूप देख ले, मन की सुनी देखना शुरू कर दिया। ये इसे लड़ना नहीं कहते। लड़ना किसे कहते हैं? मन कहता है कि देख ले, पर गुरु अंदर से आवाज देता है मत देखना, और वो लड़ता है कि मैं नहीं देखूंगा। काफी समय बिताता है, नाम जपने बैठ जाता है। इसे कहते हैं लड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कहता है कि पराया हक मार ले, साफ दिख रहा है कि सामने वाला मूर्ख है, इससे लूटा जा सकता है। गुरु कहता है मत करना, पर हक पराया नान का उस स्वर उस गाय, अपने आप को रोक लेता है। बाबा नंद सिंह जी तो कहा करते थे कि रास्ते में समझो कुछ पड़ा हुआ मिल जाए, पैसे मिल जाए, पर्स मिल जाए, हम सोचते हैं ना उठा के किसी को दे दें, किसी की मदद कर दें या ये वो। कहते थे वहीं छोड़ दो, तुम्हारे लिए है ही नहीं, वो जैसे है ही नहीं तुम्हारे लिए, उसका क्या करना है वो तुम्हारा विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मिट्टी दिखे वो धन ना दिखे, क्योंकि वो दूसरे का है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मन से लड़ते हैं वो खोज रहे हैं, जो खोज रहे हैं उसे सतगुरु दया करके ताकत बख्शते हैं, फिर वो उसके अपने भीतर अकाल मूर्त को प्रकट कर लेता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पीपा प्रणव परम तत्व है, पीपा प्रणव परम तत्व है। सतगुरु होए लखावे, सतगुरु होए लखावे, सतगुरु होए लखावे, सतगुरु होए लखावे। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री कस कट माहे, अनिक रंग नाना दृष्टा है। से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसी बात को समझा रहे हैं। संत संग अंतर प्रभ डीठा, मुझे साधु की संगत प्राप्त हो गई, उससे क्या हुआ? मैंने अपने भीतर प्रभु को पा लिया। और उससे क्या हुआ? नाम प्रभु का लागा मीठा। अब नाम जपने में आनंद आता है, मीठा लगता है वो। कभी फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो माजा दूध, सभ्य वस्तु मिठिया, रब न पूजन तुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी, भगत फरीद जी बने गुड़ के लालच में, शक्कर के लालच में। जब भक्ति कर कर वापस आए, माँ ने वो शक्कर आगे रखी तो फरीद जी ने श्लोक उच्चारण किया, माँ ये दूध, ये शक्कर, ये गुड़ सब मीठा है, पर भगवान के नाम जितना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जपते हम भी हैं पर भगत रस लेते हैं, क्यों? संत संग अंतर प्रभ डीठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सगली सामग्री, सगल सामग्री एकस घट माहे, अनिक रंग नाना दृष्टाए। नाम का रस बाबा नंद सिंह जी कहते थे ऐसा है, क्योंकि ये वाणी से प्रमाणित करे, बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आ गए कि ऐसा है जिसको रस आना शुरू हो जाए ना, उसकी दुनिया की तृष्णाएं मर जाती है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता, उसे कोई पदार्थ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। वजह क्या है?
ये पंक्तियां, सगल सामग्री एकस घट माहे। दुनिया के जितने पदार्थ हैं वो नाम के रस में शामिल हैं। उसके सामने हर चीज छोटी लगती है। हीरे जवाहरात सोना कोई आकर्षित नहीं कर सकता है जहां पर नाम प्रकट हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन लिखे हुए हैं कि पूजा अकाल की, पूजा अकाल की। महापुरुष इस बात को डिटेल में समझाया करते थे कि इसका भाव क्या है, कि लोग अलग अलग चीजों की पूजा करते हैं। ये बात को बड़ी ध्यान से समझना। बहुत लोगों को शायद समझ में नहीं आएगी या बहुत लोगों को विश्वास नहीं आएगा, पर ऐसा ही है, ये कुदरत का कानून है। जिसकी हम पूजा करते हैं उसके जैसे हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये लक्ष्य होता है, जिसकी पूजा करते हैं उसके जैसा होना शुरू होता है। मूल मंत्र क्यों जपते हैं? क्योंकि मूल मंत्र होना है। गुरु नानक को पूछते हैं क्योंकि गुरु नानक में समाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं जब तक तू काल को पूजेगा, काल का भाव, लोग पेड़ को पूछते हैं, जानवर को पूछते हैं। दास ने पहले भी कहा दया करो, पेड़ उगाने हैं। पेड़, ये तो गुरु हरगोविंद साहब जी का हुक्म है कि जीवन में पेड़ जरूर उगाओ, उगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नियामत है, इसे संभालो। जानवरों पर दया करनी, उन्हें खिलाओ। पूजना नहीं है, पूजना कुछ और होता है। लोग कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई किसी को। महापुरुष समझाते थे बूंद गिरी आकाश से, आग में गिरी, भस्म हो गई। अब यही बूंद गिरी सागर में, सागर का रूप हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं जो पेड़ की पूजा करते हैं उनको पेड़ का जन्म मिलेगा, पेड़ बन जाएंगे। जानवरों की पूजा करेगा, जानवर का जन्म मिलेगा, जानवर बन जाएंगे। कहते थे पूजा अकाल की, अकाल हो जाओगे, जन्म मरण से रहित हो जाओगे। अकाल क्या करेगा? अकाल बना देगा, काल से रहित कर देगा। अकाल कौन? एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से समझना। हम जिसे फॉलो करते हैं अपने आप वैसे होने लग जाते हैं, अपने आप। जिसकी पूजा करते हैं वही रूप हो जाते हैं एक दिन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए पूजा अकाल की, पूजा उस एक ओंकार की। कृष्ण बनना है, कृष्ण को पूज लो। गुरु नानक बनना है, गुरु नानक को पूज लो। क्योंकि ये नाम अलग अलग है, परम शक्ति एक ही है, एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसके रूप है। जैसी जरूरत होती है वैसा रूप बना के वो धरती पर आता है, तब वो सरगुण हो जाता है निर्गुण। पर जब कोई काम करना होता है तो सरगुण हो जाता है, प्रकट हो जाता है। गुरु नानक पातशाह महापुरुष समझाते थे, प्रकट हुए थे पहले भी क्योंकि निर्गुण रूप में, और उस वक्त प्रकट हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे हम जन्म लेना कहते हैं। पर असल में बाबा नंद सिंह जी कहते हैं ना, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। महापुरुषों के बारे में कहते थे, या अवतारों के बारे में ये नहीं कहना चाहिए, इसलिए अवतार पूर्व कहते हैं, गुरुपुरब कहते हैं। क्योंकि जन्म मरण दोहू में ना ही जन पर उपकारी आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इसको डिटेल में समझाया करते थे। जब कहते कोई महापुरुष जन्म लेता है ना, तो उसके भीतर श्वास जन्म लेने के बाद उसके भीतर में आत्मा प्रवेश करती है, क्योंकि वो महापुरुष गर्भ में उल्टा नहीं लटकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें वो सजा नहीं भुगतनी पड़ती। माता के गर्भ में 9 महीने उल्टे लटकना पड़ता है, ये सजा कही गई है। महापुरुष ये नहीं भुगतते। जब बालक गर्भ में से बाहर आता है तब उसके भीतर प्राण समाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म मरण दोहू में नहीं। महापुरुष मरते हैं, शरीर मरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष वो तो शरीर के साथ, कबीर जी का जीवन पढ़ेंगे ना, कबीर जी शरीर के साथ गए थे दरगाह में। भगत नामदेव जी शरीर के साथ गए थे दरगाह में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी की तो ऐसी अवस्था हो गई थी, बैलगाड़ी लेके निकल पड़े थे, भाई जिसको जिसको जाना है सचखंड मेरे पास बैठ जाओ मेरे साथ। पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, उन्हें कुत्ते को अपने साथ बिठा लिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी बैलगाड़ी समेत अब कुत्ते को लेकर सचखंड में चले गए थे।
इतिहास पढ़ो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी के बारे में दास ने गलत बोल दिया। कबीर जी शरीर के साथ नहीं गए थे, भगत नामदेव जी गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की महिमा को पहचानो। ये सब कुछ कैसे प्राप्त होगा? जो दास कथा कर रहा है, जो गुरु साहब जी करवा रहे हैं, हर बार एक ही बात सामने आएगी। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली होशियां। इन सबको पाना है, नितनेम बढ़ाओ, नाम जपने की लालसा बढ़ाओ। लालच बुरी बला है, पर बाबा नंद सिंह जी कहते हैं नाम जपने का लालच कभी ना मरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया में अगर शांति से जीना है, मन को शुक्राने में रखना है, तो अपने से नीचे वाले को देखो। पर अगर बंदगी में ऊपर जाना है, उसको पाना है, तो बंदगी में ईर्ष्या करो उनसे जो तुमसे आगे बंदगी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ईर्ष्या सही है, ये होनी चाहिए कि वो इतना करता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मांगना मांगन निका, हर जस गुरते मांगना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। निर्भो निर्वैर अथाह तोले, निर्भो निर्वैर अथाह तोले, निर्भो निर्वैर अथाह तोले, निर्भो निर्वैर अथाह तोले। दुख भंजन निधान अमूल्य, 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 दुख भंजन निधान अमूल्य। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकाल मूर्त को, अगर अकाल को, क्योंकि मूर्त एक अलग कंसेप्ट है, वो आगे आएगा। अकाल को अगर सही मायने में समझना है ना, अगर उसके कंसेप्ट को समझना है सिंपली, तो सिंपल बात यह है साथ संगत जी, हम कोई भी गलत काम करते हैं, कोई भी गलत काम, वो हमें काल के अधीन ले जाता है। और जितने भी नेक काम करते हैं, अकाल की तरफ ले जाता है। छोटी से छोटी भूल भी जो हम करते हैं, किसी का दिल दुखा दिया, चोरी कर ली, छोटी सी चीज उठा ली, अगर दास डिटेल में बताए ना बाबा नंद सिंह जी के वचन, तो डर लगता है। कहते थे लोग हाथ गाड़ी वाले के पास खड़े हो जाते हैं सामान खरीदने के लिए, जब तक खरीदते तब तक कुछ ना कुछ उठा के खा भी लेते हैं उससे। कहते थे मत किया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इतनी डिटेल में समझाते थे ना, अक्सर लोग करते ही है ना, इतनी डिटेल में समझाते थे कि ये भी मत किया करो। समझो सिंगदाना खरीद रहे हो आप, जब तक वो भर रहा है बेचारा, तब तक 4-5 दाने उठा के खा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नजरों में ये कुछ भी नहीं है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे पीछे ले जाएगा तुम्हें गुरु से, कर्मी अपो अपनी के नेड़े के दूर। असल में होता क्या है ना साथ संगत जी, महापुरुषों की अवस्था वो हो चुकी होती है, जब आदमी ढलान यहाँ पर चल रहा है जमीन पे, तो गिरने का डर नहीं होता, गिर भी गया उठ भी गया। जब ऊंचाई पर जितना आदमी पहुंचते जाता है, रास्ता उतना संकरा होते जाता है और गिरने का डर उतना बढ़ते जाता है। और जब पहाड़ की चोटी से कोई गिरता है ना, बचता नहीं। महापुरुष कमाई कर करके यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं, और यहाँ पर छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी हानि कर देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज का एक पहलू होता है, इसीलिए बड़े ध्यान से हर चीज, बड़ी ध्यान से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसकी बारीकी को समझकर
सबसे अच्छा काम पता है क्या? जो दास को अगर अपना दिमाग नहीं लगाना है, गुरु पे विश्वास है, डोरी छोड़ी हुई है, एक काम कर लिया करो पर बड़े दिल से, जो दास रोज करता है, क्योंकि जीवन के एक्सपीरियंस से जो दास ने पाया है वो दास बता रहे हैं यहाँ पर। मैं एक ही अरदास करता हूँ सुबह उठते ही। सबसे पहले सुबह मेरी होती दोपहर को उठता हूँ, क्योंकि सोते ही 9-10 बजे, तो एक ही अरदास होती है सोने से पहले भी और बाद में भी। जब भी अरदास होती है कि पातशाह जो भाव है सो कम कराई, जो ना भाव है सो ना कराई, जिथे भाव है तिथे रखी, जिथे ना भाव है तिथे ना रखी। सिंपल बात है, जो तुझे अच्छा लगे वो काम करवा लेना, जो तुझे अच्छा ना लगे, चाहे मुझे अच्छा लग भी रहा हो, पर अगर तुझे ना भाए तो मेरे से मत करवाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे परोसे प्यारे मैं लाड लडाया, भूले चुके बारक तू हर पिता माया। अगर ऐसा कोई मैं काम कर रहा हूं जो तुझे गलत लग रहा है तो रुकावट डाल दे, क्योंकि तुझे आगे का पता है, मुझे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब हम दिल से ये पुकार करते हैं ना साथ संगत जी, फिर समझ लो जो कुछ भी हो रहा है उसकी रजा से हो रहा है, फिर किसी चीज से डर नहीं लगता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए आज समाप्ति करते हैं, समय हो गया है। फिर कल आगे का कंसेप्ट, थोड़ा सा अकाल का भी बाकी है, फिर मुहूर्त का कंसेप्ट भी है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख भंजन अमोले, दुख भंजन अमोले, दुख भंजन निधान अमोले, निर्भय अथाह तोले, निर्भय अथाह तोले, निर्भय अथाह तोले, निर्भय अथाह तोले। दुख भंजन निधान अमोल, दुख अथाह तोले, दुख भंजन निधान अमोले, दुख भंजन
दुख भंजन निधान अमोले। दुख भंजन निधान अमोले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कावो। आप हाथ दे मोए बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए, पूरन होए हमारी आशा। और भजन के रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ। जो पर जाओ सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारिए। चुन सतर हमारे मारिए, आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए, हो जो सदा हमारे पछा। तुझ जो करियो रक्षा, राख लियो मोए राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी ततर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए शिव जो अवतारा, काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो, आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सवारे, सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो, कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत, चेटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला, संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान, जब उद करख करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा, जब वह करख करत हूँ कब हो। मैं मिलत दे तर सब, जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने बोझ उतार, तुम सब ही ते रहत निरालम। वेद भेद अरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभ, तांका मूढ़ उचारत भेदा। ताको पेव न पापद भेदा, ताको कर पान अनुमानित। महामूढ़ कछ भेद न जान, महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव, आप आपनी बुध है जेती। पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाय पसारा। कुछ सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोरा कई कोपा, अंडज जेरज से तज कीने। कुछ खान बहु रच देने, कहूँ कुल राजा हव बैठा। समट प्यो संतरे बैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्भव, अब रक्षा मेरी तुम करो। संगरो, दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी पर। के दुष्ट दुखत हव मरे, उर्क जवन पग परे तिहारे। इनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते है। ताके काल निकटने है, रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला, कृपा दृष्ट जाय निहारो। आके ताप तनक मोहर, और तो सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट छा सके न कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा। पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा। दुष्ट लोक ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी। आप हाथ दे ले उबारी,
ਸਰਬ ਡੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਏ, ਖੜਗ ਕੀਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ। ਆਪੋ ਹੱਥ ਦੇ ਲਿਓ ਬਾਰੇ, ਸਰਬ ਡੋਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਸ ਸੁਆਮੀ ਸੋਗ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰਸਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਮਿਟੋ ਜਿਸਿਆ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕੱਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਰਟੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਰਸ ਕੋ ਆਦਿਤ ਕਰੇ ਨਦਵਾਜੇ। ਮਨ ਸੁਨੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁੱਟੇ ਜਾਨੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਧੂਰੇ। ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਹਾਤ ਜਿਸ ਰਾਤ ਗਾਈ ਗਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਂ ਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨਿ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। 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 ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਛੋਟੇ ਨਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। सोम शुकर मंगल शुकर बुधवीर शुक्राना शुक्र शनि इतवार भी तेरा तेरा शुक्र करूं रोजाना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। उपकार तेरे गुरु जी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। हो सुख में भी दुख में भी साथ निभाया है। हम चाहे भूले पर तूने ना भुलाया है। महिमा अपार तेरी दिन रात गाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तू ही तो यकीन मेरा तू ही विश्वास है। तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। तू ही तो यकीन मेरा तू ही विश्वास है। तुझसे ये जिंदगी में हर खुशी की आस है। चरणों में तेरे गुरु जी सर को झुकाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरु जी कैसे भूल जाऊं मैं।
शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। उपकार तेरे गुरुजी गिन भी न पाऊं मैं। उपकार तेरे गुरुजी गिन भी न पाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरुजी कैसे भूल जाऊं मैं। रहमतों को तेरे गुरुजी कैसे भूल जाऊं मैं। शुक्र मनाऊं तेरा, शुक्र मनाऊं 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 मैं। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।